Good morning, students. Last class we have discussed about the electromagnetic radiation, their properties, wave properties, and their wave properties. We have seen that the oscillating electrical and magnetic field generated by oscillating charged particles are perpendicular to each other. Their wavelength and the frequency as well. All the electromagnetic radiations differ from one another for wavelength and frequency. And their limitations, what are the limitations here? Because they cannot explain, this wave theory could not explain which one? The nature of the black body radiation, photoelectric effect, variation of heat capacity, and the line spectra. These four incidences were not explained by the wave theory. So definitely what is the result coming here? But it explains which one? Diffraction, interference. These are the properties of wave. Okay, it could explain that one, but it could not explain this phenomenon, black body radiation, photoelectric effect, especially these two. So that's why, what is the conclusion came here about the particle nature? That means these, what are the black body radiation and the photochemical effect, that is the photoelectric effect, that is actually related to which one? Particle nature of the electromagnetic radiation. There we have learned about E equals to h nu, h equals to Planck's constant, and what is the value there? 6.626 10 to the power minus 34 joules second. Okay. So now total amount of energy also emitted, that is nh nu. So we have learnt about the electromagnetic radiation is not only showing the wave property but also showing the particle nature. ये दोनों की combination है ये, ठीक है. तो अभी black body radiation वही है, that body that is absorbing and emitting all type of radiations. Photoelectric effect क्या है ना, कोई light if we are making fall on a metal, so it will emit the electrons from the surface of a metal. This is called photoelectric effect. So all these things are related to which one? Energy. And that's why these are called actually the particle nature of the electromagnetic radiation. ठीक है, but इसका limitations तो एक होना चाहिए. What are the limitations here? So here also we can find out the electrons who are emitting, what is their kinetic energy, that also we can find out from here. H nu minus H nu naught. H nu naught equals to which one? That is the work function, that is called work, the first digit, the threshold energy, that is called. And that H nu naught, that is called the nu naught threshold frequency. And H nu naught is the work function, means the work function means the minimum energy which is required to eject electron. Okay, so these are already, you have learned these things, so we can find out the kinetic energy of the emitting electron, okay, by applying this one. ओके, तो हो तो गया ये चीज़, बट दोनों में कंप्लीट है कि पार्टिकल नेचर भी शो करा रहे हैं एंड एज वेल एज द वेव नेचर इज ऑल्सो शोइंग. बट लिमिटेशन क्या हुआ? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज नॉट सक्सेसफुल आफ्टरवर्ड्स. व्हाई? ना प्लैंक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन, मतलब एनर्जी की एक परफेक्ट एनर्जी या एक पर्टिकुलर एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी, ये नहीं शो करा रहे. और ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन रेडिएशन. तो इसमें जब फेल्योर हो गए, मतलब क्वांटाइजेशन मतलब एक परफेक्ट एनर्जी कि अमाउंट जब शो अप नहीं हो रहे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज ऑल्सो नॉट शोइंग देयर. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, इंटेंसिटी भी शो नहीं हो रहा है. एट दैट कंडीशन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाज नॉट सक्सेसफुल. So now we are leading to which one? Bohr's theory. Or for that we have to first discuss about the dual nature of the electromagnetic radiation. So now here what is given? The light has been considered as a wave to explain the phenomenon. कौन कौन सा phenomenon है wave की तरह? Reflection, refraction, diffraction, and to explain the photoelectric effect of light considered to be made up of tiny particles, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Discrete packet of energy, that is called photons. ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके थ्रू शो करा रहे हैं ना? पार्टिकल नेचर. और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन किसके लिए शो करा रहे हैं ना? दैट इज वेव नेचर. तो सच अ वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक नेचर, इसको ही हम क्या बोलते हैं? रेडिएशंस को ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. ड्यूअल का मतलब दो नेचर शो करा रहे हैं. एक तो पार्टिकल लाइक भी शो करा रहे हैं जिसमें फोटोन से रिलेटेड है या एनर्जी से रिलेटेड है,
और यहाँ पे शो करा रहे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, दैट इज बेंडिंग ऑफ द वेव। तो ये वेव प्रॉपर्टी को शो करा रहे, तो दैट इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर, अब जब भी आप बोर्स थ्योरी की तरफ जाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लर्न करनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये दोनों स्पेक्ट्रा आपको लर्न कर। स्पेक्ट्रा मतलब क्या है ना, दैट इज द स्पेक्ट्रा मतलब ये 7 कलर जो बैंड, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ऑल ऑफ यू नो दैट वन, and when the light is passing through the prism, है ना। तो at that condition, due to their different wavelength, due to their different frequency, they are bending in different angle and they are showing a 7 color band, that is called spectrum. Now we are coming about the emission spectra and absorption spectra. Emission spectra किसको बोलते हैं ना, the spectrum of radiation emitted by a substance, ठीक है, that has absorbed energy is called an emission spectrum, है ना। तो ये हो गया आपकी एटॉमिक एमिशन। तो इसमें 2 टाइप के होता है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो आप देख ही चुके हो, द स्पेक्ट्रम वेयर वन कलर मार्ज इनटू अनदर विदाउट एनी गैप और डिसकंटिन्यूटी आर कॉल्ड द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें क्या होता है कि विबज्योर कलर आपको दिख जाएगा कंटिन्यूअस। बट जब लाइन स्पेक्ट्रम की बारी आएगी, दैट इज एक्चुअली शोइंग एज अ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब एक एक एटॉम की पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम दिख जाता है। That's why that atoms are identified, that elements are identified specially by that line spectrum। जैसे हम फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं ना, कोई पर्सन को बायो में फिंगरप्रिंट के जरिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कोई पर्सन की आइडेंटिटी, वैसे भी ये लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट। कैसे हम समझा देते इसको, इन सच स्पेक्ट्रम द एटॉम इन द गैस फेज, ये 2 चीज़ें आपको थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। गैस फेज एमिट लाइट ओनली एट सर्टन स्पेसिफिक वेवलेंथ विथ डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। दिस डार्क लाइन ऑफ डेफिनिट वेवलेंथ आर यूज टू आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस, सो इट इज कॉल्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसलिए बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कोई एटॉम को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो बाय द स्पेक्ट्रम। मान लो ये चीज़ है कि एटॉमिक एमिशन, ठीक है, तो ये जब भी कोई चीज़ एक्साइटेड, एटॉम्स आर एक्साइटेड, कब एक्साइटेड होता है ना, कोई रेडिएशन को जो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, है ना, कोई रेडिएशन आप एब्सॉर्ब करा रहे हो, तो एट दैट कंडीशन एटॉम्स विल बी एक्साइटेड। तो जब एक्साइटेड हो जाएगा, कैसे एक्साइट होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली जम्प्ड फ्रॉम दैट ऑर्बिट टू नेक्स्ट ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट क्या है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग इनटू अनदर ऑर्बिट, सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर हियर डेफिनेटली, अभी जब भी कोई रेडिएशन आप दे रहे हो एटॉम के ऊपर, तो रेडिएशन एब्सॉर्ब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ एक्साइटेड एंड जम्प्ड इनटू द नेक्स्ट ऑर्बिट। जब भी नेक्स्ट ऑर्बिट में जम्प्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू हेयर या हेयर टू हेयर, है ना, कहीं पे भी वो जंप हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एब्सॉर्ब। अभी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कंडीशन, एटॉम इज नॉट नाउ स्टेबल इन नेचर, है ना, एटॉम स्टेबल नहीं है। उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना है, फिर से रेडिएशन को क्या करना है, एनर्जी को एमिट करनी है, एनर्जी को रिलीज करनी है, तब जाके क्या होगा, दैट इलेक्ट्रॉन इज नाउ अगेन कमिंग बैक टू इट्स स्टेबल कंडीशन, ओरिजिनल ऑर्बिट। तो तब जाके जो एनर्जी को उसने एमिट किया या उसको रिलीज किया, दैट रेडिएशन इज एक्चुअली कमिंग थ्रू द स्पेक्ट्रम, दैट द स्पेक्ट्रम विच इज एक्चुअली, अभी आप प्रिज्म रख दो तो दैट रेडिएशन इज कॉजिंग सम स्पेक्ट्रम देयर। अभी इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्यों बोलेंगे कि जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया था उसी को ही वो रिलीज करेगा और उसी को ही स्पेक्ट्रम दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये दोनों चीज़ के अंदर ये डिफरेंस आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे एक्साइटेड कंडीशन है, ये है नॉर्मल एटॉम, ये वाइट लाइट सोर्स है ना, तो वाइट लाइट सोर्स व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ नॉर्मल एटॉम, इट एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी और एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ लाइट, द कलर ऑफ लाइट देयर। जब भी उसी कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद जब प्रिज्म के थ्रू आप उसको स्पेक्ट्रम बनाओगे तो क्या दिखेगा, जिसको एब्जॉर्ब किया वो नहीं रहेगा, ब्लैंक, बाकी लाइन्स आर देयर, है ना, रेड येलो ऑल आर देयर, बट ब्लू इज एब्सॉर्ब, दैट्स ए ब्लू, आपको यहाँ पे ब्लैक दिख जाएगा, ब्लू की आपको कलर नहीं दिखेगा क्योंकि ब्लू एब्सॉर्ब हो चुका है। अब एब्सॉर्ब होने के बाद क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, समझ में आए।
एब्जॉर्ब होने के बाद द एटम्स बिकम एक्साइटेड। अभी आ जाओ इधर, अभी एक्साइटेड सैंपल खुद को नॉर्मलाइज करने के लिए दैट हैज़ टू कम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको क्या करना है, जिस अमाउंट को, जिस रेडिएशन को उन्होंने एब्जॉर्ब किया था उसी को ही वो क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, जब भी ये एमिट करेगा उसी, तो ब्लू लाइट को उन्होंने एब्जॉर्ब किया था इधर, तो इसलिए ब्लू लाइट इधर है ही नहीं, इसके बोलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, है ना। अदर कलर्स दिख जाएगा आपको स्पेक्ट्रम में, ब्लू कलर दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लू इसके एब्जॉर्ब हो चुका है। बट वही एक्साइटेड सैंपल को आपने ले लिया, तो अभी एक्साइटेड सैंपल जब खुद को फिर से ओरिजिनल सैंपल में कन्वर्ट करेगा तो डेफिनेटली दैट विल एमिट व्हिच लाइट, ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब किया तो ब्लू लाइट को एमिट करना पड़ेगा, तभी जाके वो नॉर्मलाइज होगा। ब्लू लाइट जब आप प्रिज्म के थ्रू शो कराओगे तो नाउ इन एटॉमिक एमिशन व्हाट इज द लाइट शोज हियर, ब्लू लाइट इज शोज हियर, अदर्स आर कमिंग इन ब्लैक। तो अभी इसको नेगेटिव हम बोलते हैं ना, नेगेटिव इम्प्रिंट। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इज द नेगेटिव इम्प्रिंट ऑफ विच वन, एटॉमिक एमिशन। मतलब जिस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे उसी चीज़ को क्या कर रहे, एमिट कर रहे। व्हिच कंडीशन, एक्साइटेड सैंपल कंडीशन में। एक्साइटेड तभी हुआ जब वो कुछ चीज़ एब्जॉर्ब किया, तभी जाके एक्साइटेड हुआ। अभी उसको नॉर्मलाइज होने के लिए उसी चीज़ जिसको एब्जॉर्ब किया उसको एमिट करना पड़ेगा, दैट इज कमिंग इन स्पेक्ट्रम। तो इसी के थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं भाई ये कौन सा एटॉम है जो एक्साइटेड हो गया था, तो एक्साइटेड कंडीशन में ब्लू लाइट एमिट कर रहे, तो उसी के अकॉर्डिंग बाय कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट द which atom actually that one, and that's why we can identify the element। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अभी एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था ना, कुछ व्हाइट लाइट से जो लाइट कलर जो एब्जॉर्ब किया था उसी को ही ब्लैंक आ जाएगी, भी एब्जॉर्ब कर चुके हैं, उसके बाद ही एक्साइटेड होगा। ठीक है, तो ये हो गए दोनों कंडीशन। तो ये हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली एक्साइटेड एंड पासिंग टू द और जंपिंग टू द नेक्स्ट ऑर्बिट और नेक्स्ट हायर लेवल, एंड दैट्स वाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बोर की तरफ हम जा रहे, बोर की पोस्टुलेट की तरफ जहाँ पे एनर्जी के बारे में बोला गया है, रेडियस के बारे में बोला गया है, और उस कंडीशन में हमें कितना एनर्जी डिफरेंस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाएगा कितना एनर्जी डिफरेंस आएगा, दैट ऑल्सो हैज़ क्लियर इन बोर्स पोस्टुलेट। दैट्स वाई ये जानना बहुत ज़रूरी था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये चीज़ें जब आप हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई किया तो द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर। जैसे ये सब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरर, एंड क्या स्पेक्ट्रल रीजन आपको शो कराएगा, है ना, जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल ऑर्बिट टू फाइनल ऑर्बिट में जंप्ड आउट होगा, है ना। आप रेडिएशन कर दिए हो, कोई रेडिएशन हाइड्रोजन एटम के ऊपर डाला हो, तो हाइड्रोजन एटम ने उस रेडिएशन को एब्सॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट से कौन सा ऑर्बिट में जंप्ड आउट किया, उसके बेसिस पे आप क्या देखोगे ना, आपको सीरीज दिख जाएगा, है ना। तो इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर एक्चुअली द नेम्स ऑफ द सीरीज आर गिवन देयर। जैसे इसके हिसाब से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन सा, जैसे आपको इंफ्रारेड आया या विजिबल आया, तो विजिबल आएगा मतलब सीरीज कौन सा आएगा, बाल्मर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मान लो यहाँ पे कितना है ना, आपके पास 6 है, लाइमैन, बाल्मर, पर्सन, ब्रैकेट, पिफन, हम्फ्रे। ये सब साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से उन्होंने ये डिस्कवर जो किए थे इसके हिसाब से। तो लाइमैन सीरीज आपको कब दिखेगा ना, जब इनिशियल जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की फास्ट, और उसके बाद उन्होंने जंप आउट कहाँ पे किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एज यूजुअल, फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू फोर्थ। तो एट दैट कंडीशन में आपको क्या दिखेगा ना, अल्ट्रा वायलेट। ओके, सो लुक एट हियर, जब फर्स्ट कंडीशन है ना, दिस वन इज एक्चुअली कमिंग अबाउट द n equals to 1, n equals to 2, okay, n equals to 3, 4, 5, 6. So when the electrons are jumping from one to another one, 1 to another one, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. Okay, so what is the line coming there? It is coming as a ultraviolet, and that's why this series is called Lyman series. कब ये Lyman series निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स तो एक्साइटेड हो चुके हैं 1 to 2, 1 to 3, बट when they are coming back to original, जब वो एक्साइटमेंट के बाद जब ग्राउंड स्टेट में आना चाह रहे, क्योंकि वो अनस्टेबल कंडीशन, उसको स्टेबल कंडीशन में आना ही है, दैट टाइम
they are showing the series of Lyman series, that is called ultraviolet. विजिबल कब आएगा ना, जब सेकेंड टू ऑनवर्ड्स, मतलब इनिशियल ऑर्बिट इज सेकेंड ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट से जब थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, उस कंडीशन में आपको क्या सीरीज दिख जाएगा, ये पे देखो सेकेंड टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ, व्हेन दे आर कमिंग बैक दे आर शोइंग व्हिच वन ना, दैट इज कॉल्ड विजिबल. That is according to Balmer discovered it, that's what is called Balmer series. Okay, next one is coming for which one, now n equals to 3, initial is 3 and next 4 5 6, again it is coming which one, this is coming Paschen, and this is coming Paschen and the series is coming infrared, when they are coming back. So in that way different series we can get. तो अब इसको क्या फ़ायदा, क्या क्यों ज़रूरत है इसकी जानने की ना, जब आपको मान लो दे के रखा है कि इसकी सेकेंड से थर्ड या फोर्थ में गए तो उसको सीरीज़ क्या आना चाहिए, कौन सा सीरीज़ के अंदर आना चाहिए, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि ये विजिबल सीरीज़ के अंदर आएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट इसका सेकेंड है और थर्ड और फोर्थ स्टेट इसका, मतलब फाइनल स्टेट आइदर थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ है. तो एट दैट कंडीशन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, सपोज मान लो आपको N1 दे के रखा है, N2 फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूलाज आर ऑल्सो देयर, विल डिस्कस दैट वन. तो एट दैट कंडीशन आपको पता करना है कि कौन सा सीरीज़ के अंदर आएगा. तो अगर आपको फाइनल ऑर्बिट आ जाए 3 या 4, इनिशियल तो ऑलरेडी सेकेंड दे के रखा है, तो एट दैट कंडीशन यू कैन से इट इज़ विजिबल. विल डिस्कस इन द न्यूमेरिकल ऑल्सो, देन इट विल बी मोर क्लियर. So these are actually showing that कि electrons are actually shifted from initial to final orbit by getting the radiation. जब रेडिएशन मिलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो एक्साइटेड हो जाता है, फिर उसको स्टेबल कंडीशन के आने के लिए उसको रेडिएशन को रिलीज करना पड़ता है, एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है, एंड दैट्स वाई दे आर रेडिएटिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है. So next, this is actually the their series are there. Here just you have to memorize all these things, because where the infrared is coming, where the ultraviolet is Lyman, Balmer for visible, and Paschen, Brackett, Pfund and Humphrey, they in case of these are called infrared or far infrared. Okay. Next one we are coming for the postulates of the Bohr's atomic model, that is main thing here.